Yes, Vite. So yesterday we have covered the activity part that was related to your this body mass index. So let us quickly recall the method which can be applied to calculate this value. So body mass index BMI is equal to what was the formula? That was weight of any person in kilograms divided by square of height. ब्रैकेट में हाइट इज टू बी टेकन इन मीटर्स. ठीक है, आई एम रिपीटिंग. वेट ऑफ एनी पर्सन ब्रैकेट में यू कैन राइट इन किलोग्राम divided by height of the person bracket में we can write in meters, square of height in meters. So if our value, our answer that comes out to be 18.5, then it is okay. There is no problem. But if the value is less than 18.5, we are undernourished. If the value is between 18.5 to 25, then it is fine, not a big issue. Everything is going fine. But if your answer comes out to be more than 25, then it is a point to be thought upon that we need to do some physical exercise for physical fitness. We need to do something. We should pay attention to our eating habits. न्यूट्रिशन तो ठीक है, बट ओवर न्यूट्रिशन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम. ओवर वेट हो सकते हैं हम लोग, एंड ड्यू टू ओवर वेट देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स, है ना. कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारा स्टेमिना लूज हो जाता है ओवर वेट के करके. मेनी डिसीजेज कैन अकर इन अवर बॉडी. सो वी नीड टू पे अटेंशन. अप टू दिस पार्ट वी हैव डन टिल yesterday. नाउ प्लीज कम टू दिस राइट साइड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का क्या है? दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, you can see in the here near about this part, dark words have been given here. So human development report, this is published by UNDP, United Nations Development Program. Here this word is written, ye wala, published by UNDP, यूनाइटेड नेशंस. यू कैन राइट फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये यूनाइटेड नेशंस जो है ये अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, इशू करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अर्लियर वी हैव रेड अबाउट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. तो इन दैट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वी हैव स्टडीड कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम इज टेकन एज द क्राइटेरिया, एज द मेथड टू कंपेयर द कंट्रीज. But here in this report, UNDP की report में, now that criteria has been extended. Some new things have also been added. Why new things have been added? Because in our previous example of Kerala, Haryana और कौन सा था, Bihar, we have seen that income wise Haryana is at number 1, but from the viewpoint of literacy rate या net attendance ratio, Haryana is far behind. Kerala is at first place. So that means along with per capita income, other indicators are also there which are very important. And which are those? You can underline here in this para. Above this, here it is written somewhere here. What are those? Health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. Health and education along with income. यहाँ पर income, which income we are talking about? Per capita income. ठीक है, national income नहीं है ये, per capita income ही है. So that means in addition to per capita income, 2 more things have been added. And which are those? One is health status, and second is about education, status of education of the people. ठीक है, तो ये 3 things are there which need to be paid attention to for the purpose of finding human development. क्योंकि हमारा डेवलपमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है? वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी शुड डू दिस और दैट एज पर हिज विशेज. ये गोल हो सकता है, वो हो सकता है, बट व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट? टारगेट इज द डेवलपमेंट ऑफ वी पीपल. वी पीपल मतलब ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ. सबकी डेवलपमेंट होना ही मेन पर्पज है ये सारी स्टडी का. तो डेवलपमेंट के लिए वन तो वी शुड हैव पर कैपिटा इनकम. पैसे होंगे तो ओनली देन वी कैन बाय एनीथिंग which are required for our survival. Along with that money income, we need to have good health. अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो every time we will feel sick, and we will feel not energetic, and we will not be able to do the work. हर टाइम एवरग्रीन बीमार जो होते हैं तो कुछ एक्टिवली दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो देन देयर इनकम इज ऑल्सो यूजलेस. अगर इंसान की हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर क्या करेगा पैसों से भी? फिर along with income, along with good health, और भी क्या होना चाहिए? गुड एजुकेशन भी होनी चाहिए. बिकॉज विद एजुकेशन क्या होता है हमारा? वी हैव ए वाइडर होराइजन ऑफ थिंकिंग. होराइजन जो दिमाग होता है हमारा, सोचने समझने की एबिलिटी होती है, विद अवर एजुकेशन दैट गेट्स एक्सपेंडेड.
वी कम टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स इन ए बेटर वे। हमारा जो साइंटिफिक आउटलुक होता है चीज़ों को ध्यान से अंडरस्टैंड करने का, किसी चीज़ को टेक्निकली समझने का, एक बेटर वे से लाइफ को जीने का, हमें जो वी कैन से कि वी कम टू नो अबाउट द वेज ऑफ ए बेटर लाइफ, एक पीसफुल लाइफ, कैसे अपने आप को बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इफ वी डोंट हैव एजुकेशन तो व्हाट इज अवर पोजीशन? वी आर नॉट बेटर देन एनिमल्स। आप यू कैन कंपेयर, कोई एनिमल होता है तो वो एजुकेशन नहीं है उसके पास, वो हम एनिमल, वैसे तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स साइंटिफिकली, बट अदरवाइज इन जनरल अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि ये पशु के बराबर है। तो पशु क्या होता है? मतलब दिमाग नहीं है। तो दिमाग का मतलब ये नहीं कि एनीबडी इज नॉट हैविंग माइंड, उसका मतलब ये होता है कि उसके पास पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास दैट पर्सन इज नॉट हैविंग विजिबिलिटी टू अंडरस्टैंड, विजन नहीं है उसके पास, फिजिकली नहीं कह रही हूँ, सोचने समझने के एंगल से, माइंड के एंगल से। तो दैट अवर माइंड गेट्स शार्पन्ड इफ वी गेट एजुकेशन, है ना। तो फिर दैट मीन्स कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इन दिस ऑल दीज थ्री थिंग्स हैव बीन एडेड। विच आर दोज थिंग्स? लेट अस रिकॉल: पर कैपिटा इनकम, सेकेंडली हेल्थ, थर्डली एजुकेशन। तो ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके फिर देयर एवरेज इज टेकन। तो क्या होता है, इन तीनों का जो भी वैल्यू है, इंडेक्स है पर कैपिटा इनकम प्लस एजुकेशनल स्टेटस प्लस हेल्थ स्टेटस डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि तीन चीजों को ले रहे हैं तो एवरेज जब निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो 3, ये तीनों इंडेक्स डिवाइडेड बाय 3। तो वट एवर वैल्यू वी गेट दैट इज कॉल्ड HDI, शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज HDI, जो ह्यूमन, ये है ना लिखा हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज HDI। ठीक है। तो नाउ इन दिस वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं, तो उनके लिए ये जो यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ये एक कमेटी कह सकते हैं, तो ये एक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। तो फिर उससे हमें पता चलता है कि विच कंट्री इज द बेस्ट कंट्री, जिसका HDI सबसे बढ़िया है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, एंड विच कंट्री इज एट सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, एंड सो ऑन। ठीक। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। But this is old, I have old book as told earlier also. You can take help of your phone. उसमें PDF में I have already sent the newer one. जिनके पास पुरानी books हैं, they can use that PDF. Those who have new, they can just directly see from their book. So what is given in this table? Some data regarding India and its neighboring countries for 2017. ठीक है, ये पुरानी book है, इस पे नहीं जाना है। तो now you see on one side countries are given. Countries are given: Sri Lanka, India, Myanmar. Myanmar, earlier the name of this country was Burma. तो अभी modern name है Myanmar. Pakistan, Nepal and Bangladesh. Now you see all these three countries belong to, if you remember in 9th class you have done countries of Indian subcontinent. ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट के ये 6 कंट्रीज हैं। मालदीव्स को छोड़ दिया यहाँ पे, बाकी के 6 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ साथ लगते हैं। But again, I request the latecomers to please be in time. Whenever you come in between, it distracts the attention of the teacher. Okay, so avoid this thing. So in case you are late, you can later on you can watch the video, but try not to interfere in this manner. Okay, chalo, anyhow, so in front of the countries, what is written in the first column? Gross national income per capita 2011. आगे 3 times triple P लिखा हुआ है। ये अभी हमने, we don't have to go to much detail. In simple terms, I tell you, this is called purchasing power parity in US dollar. सीधे सीधे वर्ड्स में हम आप ऐसे लो इसको, ये US डॉलर्स में ये वैल्यू लिखी हुई है और आगे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल क्या होता है, ये आगे यू विल डू इन योर सीनियर क्लासेस इफ यू कम टू कॉमर्स साइड। तो ये होता है पूरे कंट्री की इनकम ग्रॉस लेवल के ऊपर, ग्रॉस मीन्स टोटल लेवल के ऊपर, फिर पर कैपिटा उसका निकाला हुआ। आप ऐसे समझ लो, सिंपली आप पर कैपिटा समझो, ऐसे इजीली वी कैन डू। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? means the life which is when any child comes to this earth, comes on this planet, so at that time what is the expected life for him, average life, how many years he can live। तो एक अंदाजा लगाते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं कि भी एक नॉर्मली कह देते हैं 70 years या 75 years तक के आसपास एनी हेल्दी पर्सन सर्वाइव्स, हमारी लाइफ होती है। ठीक है,
तो वट एवर लाइफ वी एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए बेबी कि ये ठीक ठाक रहे, इसकी हेल्थ बढ़िया रहे, तो ये इतने साल तक जीता रहेगा, ठीक है, तो अनटाइमली डेथ नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वन अदर वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस लॉन्गेविटी, भी कितने साल कोई आदमी ऑन एन एवरेज जी सकता है. एंड देन लास्ट इज नेक्स्ट इज गिवन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग of people aged 25 and above according to 2017, कि जो लोग 25 और उससे ज़्यादा एज के हैं तो उन्होंने हाउ मेनी ईयर्स ऑफ देयर अर्ली चाइल्ड देयर लाइफ दे हैव स्पेंट इन स्कूल, कितना पढ़ाई लिखाई, कितने साल वो पढ़ाई की है. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ, नर्सरी क्लास से यू स्टार्ट, तो नर्सरी LKG UKG 3 ईयर्स, उसके बाद आपने 9 क्लासेस आपकी पूरी होगी, तो कितने हो गए आपके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 9 + 3 12, और ये अभी नाउ यू आर इन 10th क्लास, 13th ईयर ऑफ स्कूलिंग इज गोइंग ऑन. तो जब ये भी हो जाएगी तो फिर आप कहोगे कि 13 ईयर्स मैंने स्पेंड किए हैं. तो ऐसे ही ये ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि इन डिफरेंट कंट्रीज कोई बच्चा अपनी 25, क्योंकि 25 से पहले हमारा पढ़ने लिखने का टाइम होता है, तो आफ्टर दैट तो वी हैव टू डू सम वर्क ऑल्सो फॉर अवर लिविंग, तो भी कितने साल ऑन एन एवरेज एनीबडी स्पेंड्स इन स्कूल. एंड लास्ट में दिया हुआ है HDI रैंक, फुल फॉर्म ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक इन द वर्ल्ड. तो रैंक यहाँ पे है, वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड, लाइक व्हेन रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड, तो उसमें पोजीशंस निकालते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ ए गिवन सेक्शन. तो द स्टूडेंट हु गेट्स फर्स्ट पोजीशन, तो क्या बोल देते हैं, फर्स्ट रैंक या फर्स्ट पोजीशन, और जिसका सबसे कम मार्क्स हो दैट स्टूडेंट विल कम एट द लास्ट रैंक. 45 है तो 45th रैंक हो जाएगा उस बच्चे को जिसके सबसे कम मार्क्स है. एंड द स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, दैट स्टूडेंट विल कम एट फर्स्ट पोजीशन. उसके बाद जिसके हैं दैट स्टूडेंट विल कम एट सेकंड पोजीशन. तो इन दिस मैनर वी प्रिपेयर दिस रैंकिंग. तो सेम वे जो कंट्री नंबर 1 के ऊपर है विद रिगार्ड टू दिस HDI इंडेक्स, कौन कौन से थे, लेट अस रिकॉल, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, कि with regard to these 3 aspects, the country who is performing the best, that country will get first rank. ठीक है जी. तो यहाँ पर let us see, please see the notes, what is written there. This table has been prepared keeping in view 189 countries of the world. ठीक है, 189 countries के लिए ये HDI वाला रैंक जो है that is prepared. Now please come and please observe carefully. इंडिया वाले को you can underline, you can mark इंडिया की all the values. Now what do we observe, जो per capita income है उसमें से देखो which country is having highest income, can anyone tell, you can unmute, which country बेटे, Sri Lanka 11,300, and India is far behind, followed by India 6,000. Now you see on an average, मतलब रफली मोटा मोटा सा अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 5,000 रुपीस का डिफरेंस है. अब आप देखो श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया साइज वाइज, बट स्टिल वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और पॉपुलेशन वाइज भी स्मॉल कंट्री है, एरिया वाइज भी बड़ा स्मॉल कंट्री है, बट स्टिल देयर पर कैपिटा इनकम इज मोर. ठीक, दैट मीन्स श्रीलंका इज डूइंग बेटर इन कंपैरिजन विद इंडिया विद रिगार्ड टू पर कैपिटा इनकम, उनकी इनकम ज़्यादा है हमारे मुकाबले. ठीक है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखें, अगेन हाईएस्ट वैल्यू इज ऑफ श्रीलंका 75.5, मतलब ऑन एन एवरेज. अब एक याद रखना ये एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल पीपल इन श्रीलंका दे लिव कंप्लीट 75 ईयर्स और 6 मंथ्स मोर वो जीते रहते हैं, ऐसा नहीं, ये एवरेज है, एक मतलब रफ आइडिया है, एवरेज आइडिया. तो देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो मोर. इंडिया की कितनी है, 68.8. इसका मतलब इंडिया में ऑन एन एवरेज जो लोगों की डेथ हो जाती है दैट इज अराउंड 68.8 ईयर्स ऑफ एज, और श्रीलंका में वो अभी भी तकरीबन 7 साल ज़्यादा जी जाते हैं, ज़्यादा लिविंग है उनकी लाइफ है. ठीक है, और बाकी के जो कंट्रीज़ है वो इंडिया से भी पीछे हैं. तो दोनों में अगर हम मेन 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो श्रीलंका इज़ डूइंग बेटर एज कम्पेयर टू इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़. देन कमिंग टू मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अब यहाँ पर भी श्रीलंका इज़ फार अहेड ऑफ अस. वहाँ पर ऑन एन एवरेज 10.9, थोड़ा सा और राउंड फिगर करना चाहे हम लोग तो 11 भी बोल सकते हैं, कि भी ऑन एन एवरेज पीपल स्पेंड 11 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ इन स्कूल. भी कम से कम 11 साल वो, इसका मतलब क्या हो गया, तकरीबन 10th क्लास तक 11th क्लास तक की वो पढ़ाई कर लेते हैं. और इंडिया में कितनी है, 6.4. इट इज़ वेरी लेस. इंडिया में तकरीबन
छः साल या 6.5 साल, 6.25 साल ऐसे बोल सकते हैं, इतना लाइफ अपना वो बच्चे जो हैं दे स्पेंड इन स्कूल. This is not for all the students. जैसे you people are spending more time, you have already spent more years. ये average निकाली हुई है, because all people do not have same type of life conditions, same type of situations are not there with everyone. तो कोई छोड़ देते हैं, कईयों को बीच में due to any financial problems they have to leave the school. कईयों को कोई और घर की प्रॉब्लम है, स्कूल दूर है, या स्कूल इज नॉट देयर इन देयर लोकेलिटी, खास करके विलेजेस में. तो ऐसे वेरियस प्रॉब्लम्स कैन बी देयर. देन लास्ट, coming to the most important part, this you have to learn also. HDI rank of Sri Lanka is 76th and India का है 130. तो अब आपने ये नहीं सोचना है कि 130 की नंबर वाइज वैल्यू इज मोर तो इंडिया इज बेटर. नो, नाउ थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ पोजीशन इन क्लास. तो फिर बेटर पोजीशन किसकी है? दैट इज ऑफ श्रीलंका. 76 पोजीशन पहले आई, 130th पोजीशन तो देखो श्रीलंका की कितना बाद में आती है. तो इसका मतलब श्रीलंका, ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एज वेल एज पॉपुलेशन, geographical size and population wise, it is a very small country, but it has paid much attention to its all the indicators of development, whether it is income, per capita income, या health या education. मतलब they have made more efforts. यही clear हो रहा है, this is becoming clear from this table, कि if they have got better values here, so that means certainly they would have worked in this field. ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा उनके यहाँ. ठीक है. तो this type of HDI index is also helpful to compare the countries. ठीक. Now if I ask you one question here and I want you to think carefully, and you can unmute yourself, any student, if he or she wants to answer. Now the criteria which was given by World Bank and this criteria given by Human Development Report, what is the difference between these two criteria? Anyone can tell? Now we have studied in detail. Anyone? What is the difference? उसमें क्या था वर्ल्ड बैंक वाले क्राइटेरिया में? What was the main thing and what is the main thing here in this criteria? Well, in the World Bank criteria, only per capita income was targeted, whereas in Human Development Report, a group of per capita income, health and education counted as a group. Education? Yes. As a group. Yes, yes, very right. Perfectly right answer. This is what I wanted you to understand. Very right answer has been given by Moksh. तो वर्ल्ड बैंक वाले क्राइटेरिया में ओनली वन थिंग इज स्टडीड, दैट इज ओनली पर कैपिटा इनकम, मतलब मनी वाइज ही देखा जाता है. बट हेयर इन दिस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की HDI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या HDI मेथड के अकॉर्डिंग, along with per capita income, two more things are also being paid, 2-3 things, more things are being paid attention. तो ये सारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ये जो लिटरेसी रेट है या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, ये यहाँ न्यू वाली बुक्स में नहीं दिया हुआ, तो ये सारा स्कूलिंग का, तो लिटरेसी और ये सारा कुछ, दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन. सो मीन्स एक वाइडर ग्रुप ऑफ indicators have been included. So can you tell me कि which criteria seems to be a better criteria if we compare these two, World Bank and ये वाला HDI? Which seems better? Please repeat. The human. कौन सा क्राइटेरिया आपको बढ़िया लग रहा है कि दोनों को अगर कंपेयर करें तो विच वन इज बेटर, जिसमें ज्यादा चीजें? यस, वेरी राइट, सेकंड वाला. तो सेकंड वाला कौन सा है? यही वाला जो HDI वाला है. ठीक है. तो इट गिव्स अस ए बेटर पिक्चर, हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ बताता है कि हाँ भाई ये कंट्री अगर फर्स्ट है तो क्यों है, सिर्फ मनी वाइज नहीं, बाकी चीजें भी यहाँ पे बेटर है. ठीक है. सो दैट इज राइट आंसर. ये हमारा एक क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया एंड HDI क्राइटेरिया. चलो, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज. यस, तो नाउ नेक्स्ट पेज के ऊपर the same thing has been given कि, let me take out from my phone also, just a second beta, because I also need the latest data. Yes. हाँ जी. तो in this table which we have just seen, तो Sri Lanka is doing
better या it is much ahead of India. ये मैंने अभी आपको बता दिया. चलो, now coming to the next part. यहाँ पर है sustainability of development. Very interesting and very important and very lively issue. Present time के according, it's very much required issue of the day, a need of the time. So sustainability of development, or you can write here in bracket, you can write sustainable development. Short form में ऐसे भी आ सकते हैं, sustainable development or sustainability of development, one and the same thing. तो now question is कि what is sustainable development? तो sustainable development का meaning होता है कि we human beings right now, whosoever we are living on this earth, now nature has provided us many resources. There are variety of natural resources available to us. चाहे वो minerals हैं, whether it is water, whether it is forest, whether it is air, whether it is forests or plant life, animal life, everything is there on this earth. Environment में whatever comes, science में आप पढ़ते हो, तो environment में whatever comes that has been given to us by nature, है ना? And human beings का role क्या है? We human beings have the ability to use those natural resources. Human beings ही उस environment को exploit करते हैं, किसके लिए? In order to fulfill their needs, है ना? तो अब sustainable development means कि we people have to make use of those resources, natural resources, in such a manner that we should be able to fulfill not only our own needs, our present needs, but we have to leave some resources for our next generations also. Listen again what I have said. I said sustainability of development, yeah, sustainable development means that we people have to make use of environmental resources or natural resources in such a manner that we should be able to fulfill our present needs, as well as we should be able to leave sufficient resources for the children, for the generations who have to come to this earth. हमारे बाद जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ियां हैं, अगली जनरेशन्स होंगी आज से 100 years के बाद, 200 years के बाद, आज से 50 years के बाद, तो जो लोग होंगे उनके लिए भी we have to leave the resources. अब वो कैसे? Now you know in 8th class, I hope you would have been able to recall कि you have read about renewable resources and non-renewable resources. Have you read? Yes or no? Yes. है ना, पढ़ा था हमने. तो हाँ जी, very right. तो can any one of you please let me know what is the basic difference between renewable and non-renewable resources? Please unmute भी करो और वीडियो भी दिखाओ बेटे, मुझे ऐसे पता नहीं चलता फिर. Anyone who wants to answer? What is the basic difference between renewable and non-renewable resources? This many time you read in your science subject also. हाँ जी आंचल, please unmute yourself and tell. Renewable resources can renew, whereas the non-renewable Bete, be louder. I am unable to hear. limited and cannot renew. Whosoever can speak loudly. The renewable resources can renew. Can you hear me, ma'am? बेटे जो भी बच्चा बोल रहा है ना, Can you hear that is me? not at all audible. Anyone who can speak loudly as much as possible, because without renewable listening, resources can never become extinct, whereas the non-renewable resources may end sometime. Yes, that's right. I hope, I feel others would have also answered in the same way. Wording can be different, hardly matters. Renewable resources होते हैं which can be renewed, which can get renewed themselves. अपने आप ही बनते जाते हैं. We use them, but still with the nature's interference, nature जो होती है अपने आप से उनको renew करती रहती है. जैसे हम कह देते हैं water है, तो अपने आप से स्नोफॉल होती है, फिर मेल्टिंग होती है, ओशन में जाता है, फिर इवेपोरेशन होती है, रेनफॉल होती है, फिर वही काम चलता है, मतलब एक वाटर साइकिल चलता है. तो अपने आप से विदाउट एनी इंटरप्शन बाय द ह्यूमन बीइंग्स वो नेचुरल तौर पे वो रिसोर्सेज अपने आप से रिन्यू हो जाते हैं, फिर से बन जाते हैं. ठीक है. ऑन दी अदर साइड दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, विच वंस दे गेट डिप्लीटेड then it is very difficult for them to get replenished. It takes millions of years, जो जल्दी से दोबारा नहीं बनते हैं अपने आप से.
तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आ जाता है कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो दिस टाइप ऑफ दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब उनको हम ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते, आर्टिफिशियली वी कैन नॉट मेक देम, it naturally they come into existence, but in a natural way it takes millions of years, बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है। तो now if we think we human beings, we as a normal human being we cannot survive for millions of years। आपकी या मेरी एज मिलियंस ऑफ ईयर नहीं हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 ईयर 80 ईयर, ज़्यादा और ही ज़्यादा मान ले 100 ईयर, है ना। जापान में तो 100 ईयर से भी ज़्यादा है, 110 ईयर्स, इससे ज़्यादा तो एक ह्यूमन बीइंग नहीं सर्वाइव करता है नॉर्मली सारे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी डेथ हो जाएगी 100 ईयर्स तक आते आते, बट वो रिसोर्सेज तो फिनिश हो गए, हमारे 100 ईयर्स के लाइफ स्पैन में वो रिसोर्सेज दोबारा नहीं बनेंगे, बिकॉज उसमें लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो अब यहाँ पर नाउ इन दिस वाई आई हैव टेकन दिस इशू, बिकॉज हियर वी कैन सी one example has been taken from renewable resources, and on the next page one example has been taken from non-renewable resources type, ठीक है। तो यहाँ पे we can see ground water in India, ठीक है। अब now water word से हमें clear है, it is a renewable resource, and ground water मतलब जो हमें अर्थ के नीचे से मिलता है वो। Now its status has been mentioned here, later on you can read. So now groundwater is under serious threat due to overuse in many parts of the country. जैसे you can see in the pic also, यहाँ जो बनाया गया है डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताया कि जो वाटर का लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल, दैट इज गोइंग डाउन एंड डाउन। वाई? बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग। पहले जो पानी यहाँ तक कितने फीट डिगिंग करके आ जाता था, अब वही उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ानी पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और ज्यादा कर रहे हैं और पानी नहीं है। मतलब पहले यहाँ तक था, कहने का मतलब ये एक सिंबॉलिकली है कि भी पहले थोड़ी सी डिगिंग करके पानी मिल जाता था, लेवल वाटर लेवल का जो वाटर टेबल है वो ऊपर था, बट नाउ एक्सेसिव यूज के करके, ओवर यूज के करके, नाउ दैट वाटर टेबल इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड वी हैव टू डिग मोर, ज्यादा नीचे तक खुदाई करके ही हमें वो पानी अवेलेबल हो पाता है। नाउ व्हाई इज सो हैपनिंग, इसका रीजन क्या है? दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग मेनली not everywhere, mainly it is coming in those parts of our country where there is excessive use। अब excessive use का मतलब क्या है? excessive use होती है in agriculture, ज्यादा जो वाटर की कंजम्पशन है दैट इज फॉर इरिगेशनल पर्पस। तो ट्यूबवेल लगवा लेते हैं या वेल्स होते हैं, खास करके ट्यूबवेल मोटर लगाते हैं तो वो पानी को ज्यादा निकालते हैं। तो फॉर हैविंग मोर, नाउ वी हैव रेड इन 9th क्लास अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एक कंप्लीट पैकेज इज टू बी यूज्ड, जिसमें HYV सीड्स आर देयर, और क्या होता है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल जो पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर ह्यूज वाटर ऑल्सो, ज्यादा इरिगेशन चाहते हैं, वो थोड़े पानी से उनका काम नहीं चलता है। मतलब अगर कम पानी डालेंगे तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट्स की। तो क्योंकि वो एक आर्टिफिशियली दोज थिंग्स हैव बीन मेड विद ह्यूमन एफर्ट, मतलब सीड्स को हाइब्रिड सीड्स को यूज किया जाता है या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज किया जाता है, तो वो एक मतलब पैकेज होता है, उसमें मोर वाटर कंजम्पशन इज देयर इन इरिगेशन। तो उसके करके जो एरियाज में ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, इन दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस प्रॉब्लम इज कमिंग कि अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है दैट इज गोइंग डाउन। नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल, इफ यू रिमेंबर, कि विच आर दोज 2 या 3 स्टेट्स जहाँ पे ओवर यूज ऑफ वाटर होती है? थिंक केयरफुली, क्विकली टेल मी। यस बेटे, प्लीज से अगेन। मैम पंजाब। वेरी गुड, शाबाश। और पंजाब का एक नेबरिंग है हरियाणा। वेरी गुड। बिहार एंड झारखंड। बिहार नहीं, बिहार नहीं है, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा के साथ फिर कौन सी स्टेट लगती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का सारा उत्तर प्रदेश नहीं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो हरियाणा वाली साइड पे लगता है। उत्तर प्रदेश ना, आपको शायद पहले भी आई हैव टोल्ड, बहुत बड़ी स्टेट है। तो जो साइड बिहार वाली साइड पे लगती है दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न यूपी, और जो हमारे इधर हरियाणा वाली साइड पे जो पार्ट लगता है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न यूपी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एग्रीकल्चर इज वेरी डेवलप्ड, बहुत फर्टाइल एरिया नेचुरली ऑल्सो, बट फार्मिंग भी यहाँ बहुत बढ़िया होती है, तो उसमें मोर वाटर कंजम्पशन है। तो ये एरियाज में ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ठीक है। ऐसे ही वन अदर इज गिवन कि जो हमारा ये साउथ इंडिया में है,
in between या last वाली lines में it is given hard rock plateau areas of central and south India. वहाँ पर भी थोड़ी पानी की shortage है, कमी है वहाँ पर भी, and some coastal areas और जहाँ जहाँ urban settlements बन रही हैं. सारे कोस्टल एरिया का मतलब ये नहीं होता कि ओशन पास में है तो वहाँ पानी भी ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आई वुड लाइक टू शेयर लेटर ऑन वेन एवर आई गेट टाइम टू फाइंड महाराष्ट्र वाली साइड पे वहाँ एक एरिया विदर्भ एरिया, आपने सुना होगा विदर्भ. तो वहाँ पर पानी की इतनी शॉर्टेज है कि जो लोगों को ये वेल्स वगैरह की खुदाई करते हैं ना, वहाँ पे मोर देन 40 फीट उनको बेचारों को नीचे जाना पड़ता है, पानी नहीं होता. और जो वेल में पानी आता है वो बड़ा थोड़ा सा पानी आता है, गंदा सा पानी आता है. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर. और अर्बन सेटलमेंट्स का मतलब कि न्यू cities are coming into existence, urban areas are coming into existence. और urban areas का जो our lifestyle है, that also has more consumption of water as compared to rural habitations. अब शहरों में हमने वॉशिंग करनी है, मशीनें हैं, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, किचन का काम है, डिश वॉशर्स हैं, ये सारे कामों में बहुत ज़्यादा वाटर की कंजम्पशन होती है. तो रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली ये सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स नहीं होते या मॉडर्न गैजेट्स नहीं होते, तो थोड़ा कम से भी काम चल जाता है. ठीक है, तो इस करके ये अर्बन सेटलमेंट वाले एरियाज में भी ये सारा कुछ ये ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम आ रही है. ठीक, तो ऑल्दो हम कहने के लिए तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट इफ़ वी आर मिस यूजिंग दैट सोर्स, इफ़ वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द प्रॉपर एंड केयरफुल एंड जुडिशियस यूज, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पानी भी खत्म हो जाएगा. ओशन में तो है, बट दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर अवर ह्यूमन कंजम्पशन. उसको हम पीने के लिए नहीं यूज कर सकते, उसको फिर लाएंगे कैसे, उसको ओशन के पानी को घरों में कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो मतलब हुआ कि चाहे ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट अनगाइडेड या अनजस्टिफाइड ह्यूमन कंजम्पशन, ओवर यूज ऑफ दिस वाटर रिसोर्स, दैट मे bring us to a situation when there will be no water. एक आपने सुना होगा many times it is said कि next world war among different countries of the world that will take place because of water. Scarcity इतनी हो जाएगी, पानी के लिए लोग लड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है. So that means we people have to pay attention to this judicious use of this groundwater. ठीक है, तो ये this was the example of renewable resource. Now coming to next one, very interesting example is given. नेचुरल रिसोर्स हेडिंग करके दिया हुआ है. एग्जॉशन होता है खत्म हो जाना, एंड हो जाना. जैसे कई बार हम बोलते हैं कि कोई काम करके आए तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, कि बहुत थक गया हूँ मैं. तो ऐसे ही यहाँ पर थकने वाला नहीं है, यहाँ पर है कि किसी चीज़ का एंड हो जाना. तो नाउ हियर दे हैव टेकन एग्जांपल ऑफ क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम जो होता है ना, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, बाद में उसको रिफाइन किया जाता है, फिर पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, और बहुत सारे उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है उसको बोला जाता है क्रूड ऑयल. तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो फिर दैट इज़ वाई फर्स्टली दैट इज़ टू बी रिफाइंड इन द पेट्रोलियम रिफाइनरीज. ठीक है जी. तो चलो अब यहाँ पर दे हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ सी, एक दिया मिडल ईस्ट, एक दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड देन इज वर्ल्ड.